The Lord is in his holy temples. Let all the earth keep silence before him. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Worship the Lord in holy splendor. Tremble before him, all the earth. Today is the 6th Sunday after Pentecost, and we adore and praise God for this Sunday as we worship him. As the theme for our worship today is, as we bring our prayers, our supplication, and the praise singing, the theme is, be doers and not merely hearers of the word. The Bible says, the prophet Isaiah says in chapter 6, verse 6, the Lord says, I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offering. Let us ascribe to the Lord, which is glory due to him. And let us give thanks in his courts and praises. And let us praise God and adore his name. Thanks to God whose word was spoken in the day that made the earth, is the voice that called a nation, is the fires that tried the world. God has spoken, praise him for his open word. Thanks to God whose word incarnate glorified the flesh of man. Deeds and words and death and rising tell the grace in heaven's plan. God has spoken, praise him for his open word. Thanks to God whose word is answered by the Spirit's voice within. Here we drink of joy unmeasured, life redeemed from death and sin. God is speaking, praise him for his open word. Amen. Let us pray. O Lord, we beseech you mercifully to receive the prayers of your people who call upon you, and grant that they may both perceive and know what things they ought to do, and also may have grace and power faithfully to accomplish them. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. The responsive reading this morning has been taken from the book of Psalms, chapter 119, verses 9 to 13 and 16. Please respond by saying, Thy law is within my heart. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word, and with my whole heart I will seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
The first reading is taken from Jeremiah chapter 7, verses 1 to 7. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Stand in the gate of the Lord's house, and proclaim there this word, and say, Hear the word of the Lord, all you of Judah who enter in at these gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Do not trust in these lying words, saying, The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if you do not oppress the stranger, the fatherless, and the widow, and do not shed innocent blood in this place, or walk after other gods to your hurt, then I will cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. This is the word of the Lord. May the Lord add blessings to the reading and hearing of his word. Amen. Epistle reading is taken from the book of James, chapter 1, verses 22 to 27. James explains the difference between true and false religion. Be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who observes his natural face in a mirror, for he observes himself and goes away and at once forgets what he was like. But he who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer that forgets, but a doer that acts, he shall be blessed in his doing. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, that man's religion is vain. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Here ends the reading. Thanks be to God. पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
Gospel reading has been taken from the Gospel according to Matthew, chapter 7, verses 21 to 29. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, or do many works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teachings, for he was teaching them as one who had authority, and not as their scribes. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family, for the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world, and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in this city, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers, skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers, students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor, the hungry, the destitute, the oppressed, the unemployed, the sick, and the dying. We remember especially during days of this coronavirus, where whole mankind is suffering, many who are dying. We pray that you would, Lord, remove such sickness out of the face of this earth and heal people and restore back everyone. And for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, especially for our President, the Prime Minister, the Lieutenant Governor and Chief Minister of this state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world, especially we pray our worship services and many churches all over the world on this country who are worshiping at home, and as we do the virtual worship services, bless all who sit at home and worship together. Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for P.C. Singh, our moderator, for Dharmaraj, moderator of the Church of South India, and Joseph, Metropolitan Marthoma Church, for Varis, our bishop, for Timothy and Jay Kumar, our presbyter, our lay leader, Ashish Samuel and Anurag Smith, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer.
that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace
with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, all will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Let us look to the Lord in prayer. Lord, the Heavenly Father, as we look upon the word that we look to ourselves, written by our own hand, Lord, let it be a blessing to all who hear, that they may grow in your likeness. Bless us, Lord, as we worship and adore you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Today being the sixth Sunday after Pentecost, we are reminded a very important theme on this sixth Sunday. Be the doers and not mere hearers of the word. Hearing is very important in order to be a doer. Unless we hear the word of God, we cannot apply it into our life. It's important that we cannot deviate away from one aspect of hearing and then do the other aspect without hearing. It's not possible. It's very important. And today the scripture has given a very clear understanding from the word of God, which is so relevant today during this time of coronavirus. It's very important that this time the scripture is very, very powerful today. Jesus said, as you heard the gospel in Matthew chapter 7, that one who hears the word of mine and does them is like a wise man who builds his house upon rock. This is the song that we've been hearing this
since our childhood for generations, been taught. And we see the house that is built on sand, how that get demolished by the winds and by the waves of the sea. So rock is very important, and to have a rock-like faith, we have to hear and be the doers of the word. And that's what the Bible is all about. God gives us a clear understanding of the scripture. We just read from letter of James, which gives a very clear word of God is like a mirror. He gave an example. Listen, you look yourself in the mirror. When you go away, don't forget how you look like. It says that you need to remember what kind of person you are. Don't deceive ourselves if you hear the word. Don't deceive it. Stick on. Stay on in the word, whatever phases of life we live in, we go in. Then we hear about something very good, important, is about Jeremiah. Prophet Jeremiah gives us a very good understanding about the Word of God. And we'll be taking this text and reminding us a very important thing about Jeremiah. Lord told him to stand at the temple gate and proclaim the Word of God. It is well at that time, that people shared the Word of God at that time when there was a festival moment. And for the festival when they come for, and one of the festivals, Jeremiah stood over there and spoke the Word of God. And his intention of sharing or proclaiming the Word of God has been very clear. He starts saying this, chapter 7 and verse 2, hear the word of the Lord. He says, hear the word of the Lord. And what the word of the Lord is, he says, amend your ways, your deeds. I will let you dwell in this place. Do not trust in deceptive words. And what was the deceptive words at the time of Jeremiah was, this is the temple of God, this is the temple of the Lord, this is the temple of the Lord. He was not thinking this is the right thing to say. What the right thing was saying that you would practice justice among yourselves, with your neighbors. You won't oppress the orphans and the widows, that you will not shed the innocent blood in your country, in your own place. You will not go above and go behind the other gods apart from Lord Yahweh. And he says, I will give you permission to dwell in this house of the Lord as long as you honor the Lord, as you do the will of the Lord, as be the doer of the word, doer of fulfilling the commandment, fulfilling the covenant promises. And that's very important. God gives us a clear instruction as friends from the scripture in terms of precepts, in terms of principles. God's word is like, somebody said it, is like a log sitting on the top of the ice-frozen lake. When the ice thaws and melts, the log penetrates to the water and becomes a part of the lake. The trial that comes along in life are like that thawing process. They melt the heart and allow God's words to penetrate and become a part of it. And that's what we are like. It's different areas and different walks of life from very birth till death. The life in which the Bible penetrates, it gets into us. It gets in every phases of our life. Martin Luther once says, the hymns that we sing would be like, and the Bible that we read and understand, it's like something. He says, let them lose it. We sang such beautiful hymns every Sunday we sing. Our Lord's Prayer, our doxology. We do these prayers in singing. What I said, let it be loosed into our life. Let it come. Let it flame comes and spring its own into our lives. This is very important in today's world, and we find it very difficult to understand this because today it's very difficult to hear these words become an encouragement of our faith and growth in our faith, because we are stuck up in this coronavirus where there is always a news which comes. When we read or when we hear people commenting and sharing, we get worried, we get fearful, we get depressed. We have no clue what will happen next. I tell you, the most of us getting paranoid and sort of depressed and obsessed, not willing to understand what God has to say.
to move ahead in our life through the Word of God and its promises. These are the days we need to introspect and see. Is anything that we have done wrong we need to correct by the Word of God in the past? The consequences that we are facing today, are we willing to understand that these wrongs that has happened in our life we need to correct? Am I willing to change no matter what my age, my stature or my position is? You know, Billy Graham said once like this to us. He said, you know why at the cover of the Bible written holy? He said, why it is written holy? And why it should be called holy? Because it is called holy when there is so much of lust and hate and greed and war that is found. It is found in the Bible. We see a lot of it. It can tell you why. It is because Bible tells the truth. Bible teaches that we exchange the truth of God for the devil's lies about sex, and about examples of drugs and alcohol and religious hypocrisy. Bible tells this. Jesus is the ultimate truth. That's the truth. Furthermore, he tells the truth. That Jesus said that he was the truth and the truth would make us free. Bible is the only thing that we can combat devil. Quote the scripture and devil will run. That's what Billy Graham said. You quote your scripture, memorize verses, say it in your prayer to yourself, and the devil will flee away. Scripture, the word of God, is like a sword that you will drive temptations away. The psalmist says, Psalm 119 verse 89, he said, O Lord, your word is eternal. It stands firm in heaven. Yes, that's very important. It's eternal. Heavens and earth will pass away, Jesus said. But my word will never pass away. But Peter says in his first letter, chapter 1, verse 25, your word of the Lord stands forever. It is firm. And this is the word. This is the word that we preach today. Is that word that stands in our hearts, in our lives firmly. It's very important. We can't get away. They are written on our hearts. This word of God is written on our hearts. It gives us today upon and reaches to our heart because it is written. It will fix these words in our hearts. Moses said to the people of Israel in Deuteronomy chapter 11, verse 18, fix these words into your heart and minds. Take them as symbols in your hand and bind them in your foreheads. Take this word very strongly. These are the precepts written in our hearts. They are like light that overcomes the darkness. These words of God, your words, very famous words. Psalm 119, verse 105 says, the psalmist says, the word is a lamp to my feet and a light for my path. That's the word we believe. That's where we pass the darkness away because the light is there. The word of God is there in us. This word of God is always, we love and adore. We live in that word of God. Your word came. Jeremiah says, the word came, chapter 15, verse 16. Lord, your word came and I ate them, and they were a joy in my heart. You ate the word of God, you will get joy in our heart. Delight in our heart. In His name, O Lord Almighty, we delight in this word. The word of God is like a crushing hammer. It's not my word like a fire. Jeremiah says, declares the Lord, like a hammer that breaks the rock in pieces. You know, the word of God and the whole the scripture is so powerful, it's so affirmative that when you recite, when you read it, when you pray, when you make it happen in life, it happens. Things started happening in our life. But today, the most of them, it is not a weapon to be used. But the Bible says, use this as a weapon in your life. Paul says in Ephesians chapter 6, verse 17, he says, take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Use it as a sword. As Billy Graham said, use it when devil attacks. Use the word. You don't have to use your energy. Use the word. Use Jesus in your life. Let it work.
as an effective instrument, as a saving power, as life-giving power, like a crushing hammer. Make it use, make it happen. Because the effect of the Word of God, not only mere hearer, but doing, it purifies our life. It cleanses us. How can a young man keep his life pure? The psalmist asked this question. And the Lord answered in Psalm 119 verse 9, by living according to your Word. That's where we need to be thinking on that. If we want to life are purified from the powers of evil and darkness, from sickness, from pesticides, from all powers of the enemies of the natures, that people who hate you, the only thing that purifies us is believe the power of the Word. We are called to believe. Now that you have purified yourself, obeying the truth, so that you may sincerely love your brother, love another deeply from your heart. That's what Peter says to his church in first letter of Peter, chapter 1, verse 22. When you're obeying it, let it happen. And make it happen by love to fulfill the promises of the Scripture. The Word of God has manifold purposes. It gives life. It gives hope. It relates to the warning to the people that the Word says. It's a warning that we should not go away from the very purpose of the Word of God in our life. It gives us a knowledge to remain firm in any adverse situation, because the Word is eternal and we stick on to the Word for eternity. There are many things that can be said, but as the Word of God is divinely inspired and being called to believe, all Scripture are God-breathed, all God's breath, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. That's what the Word of God is. Let's all of us fill us with the Holy Spirit. And let us fill us with the promises. Let us let's become hunger before the Lord by understanding the Word of God. Let us feed our hunger like honey, the Word of God. I will just say, as people write poems on seasons, on flowers, on natural things, upon different character, there's this little poem is written about the Word of God. Somebody expressed like this, what is the Word of God? In a poetic form. The Word is like a garden, Lord, with flowers bright and fair. Everyone who seeks may pluck a lovely cluster there. The Word is like a deep, deep mine, and jewels rich and rare. Oh, may I love that precious Word. May I explore the mine. May I its fragrant flower glean. May light upon me shine. Oh, may I find my armor there. The Word, my trusty sword. I will learn to fight with every foe. Let's pray. Lord, thank you. That's very encouraging to us, Lord, and to all who hear, that the Word will continue to become a light in our heart, a sword to defend against the evil, and an encouragement till eternally, as the Word is eternal to us, Lord. That we will not fade our faith away, no matter what happens to our lives, no matter what changes may come, but we remain firm, committed to your Word and the promises. Help us, Lord, as we hear, we continue to remain strong, committed to your Word. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures.
he ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit remain with us now and forever. Amen. Children of the Heavenly Father, safely in His bosom gather, nestling but not star in heaven, such a refuge there was given. God is owned, tend and nourish, in His holy course they flourish, from all evil things He spares them, in His mighty arms He bears them. Neither life nor death shall ever from the Lord His children sever. Unto them His grace He showeth, and their sorrows all He knoweth. Though He giveth or He taketh, God His children have forsaken. Is the loving purpose only to preserve them pure and holy. Amen. आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज पवित्र आत्मा अवतरण के पर्व के पश्चात का आज छठवां रविवार है और आज हमारे मनन चिंतन करने का विषय है कि तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्त्री प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आइए हम सब मिलकर दया याचना की प्रार्थना में साथ शामिल होंगे। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना हम करेंगे। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, जो आपकी दुहाई देते हैं। वर दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 119 9 से 13 और 16 आयत से। आप कृपया उत्तर दें। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन।
आपके सामने यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय की 1 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आप सबको आशीष दे। मैं पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 22वें पद से 27वें पद तक। याकूब 1:22 से 27। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की कलेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और 21 से लेके 29 आयत तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उसे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर से टकराई और वो गिर के सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट
और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्ग एक पिता अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। अपराध को
हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
फूल गाए झूमे डाली नाचे धरती सारी नाचे धरती सारी तू ही दाता देश में दाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी हाथों जोड़े दिल को खोले आए हैं शरण तेरी हाथों जोड़े दिल को खोले आए हैं शरण तेरी पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर जान लिए पुकारे जान लिए पुकारे तू ही दाता विश्व दाता तेरी दुनिया सारी तेरी दुनिया सारी। आइए हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें। धन्यवाद प्रेम पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आज के दिन प्रभु जी आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है। आज के दिन में हमारे संग साथ रहे प्रभु जी। जब हम इस आराधना में हम एक साथ शामिल होते हैं तो आप अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए। हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन से जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं और उससे जो भी कुछ सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसको अपने जीवन में हम लोग ग्रहण कर सकें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत कर सकें। प्रभु जी हम सबके साथ रहे और हमको अपने आशीष में बनाए रख। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आज हमने वचनों में पढ़ा है, जिसमें बताया गया है कि हम केवल वचन को सुनने वाले ही ना हो, वरन उसके अनुसार हमारे जीवन भी होने चाहिए। जैसा कि आज सुबह का हमारे लिए मनन चिंतन का विषय ये है कि हम वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बने। क्योंकि हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन अपने जीवन में उसका पालन हम लोग नहीं करते हैं। हम बाइबल पढ़ते तो हैं, परंतु बाइबल हमारे जीवन से क्या कहना चाहती है उस ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम रोज़ प्रार्थना करते तो हैं, परंतु हमारी प्रार्थना केवल हमारे अपनों तक ही सीमित रहती है और हम दूसरों को भूल जाते हैं। और हम हर रविवार प्रभु यीशु की उन 2 आज्ञाओं को दोहराते हैं और उनका हम पूर्ण रीति से पालन नहीं करते हैं। जैसे कि आज्ञा है कि तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। लेकिन हम में से कितने हैं जो इन आज्ञाओं का पालन करते हैं या उन पर अमल करते हैं? शायद हम में से कोई नहीं, क्योंकि इजराइली भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में असफल रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु अपने वचनों के अनुसार हमें ये चुनौती देते हैं कि हमें केवल वचनों को सुनने वाला ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहूदियों और फरीसियों को देखते हैं तो उनके जीवन में जो उनके तमाम कार्य थे वो सब दिखावा थे, जिसमें वे लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करने में कितने लीन हैं। क्योंकि उनकी प्रार्थना सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए होती थी, और जब वे उपवास करते थे तो वे लोगों को दिखावे के लिए उपवास करते थे। और जब वे अपना 10वां अंश देते थे तो वो दिखाते थे ताकि लोग उन्हें धर्मी जाने। इसलिए वचन हमें बताता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम इस प्रकार से प्रार्थना करो कि जब तू प्रार्थना करे
तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि लोग जो है कि आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की आवश्यकता है। यदि तुम उपवास करो तो हमारा उपवास इस तरीके का होना चाहिए। वचन में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और फिर लिखा है कि हम लोगों का दान किस प्रकार से होना चाहिए। वचन में लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जब देता है तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं कि जो केवल अपनी जुबान से हे प्रभु कहता है और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है या अपने भले कामों को दिखावे के लिए करता है, तो वह परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करता है, तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि भले कार्य दिखावे के लिए नहीं वरंतु सही नियत से होने चाहिए, क्योंकि भले कार्यों का अर्थ है मसीह की आज्ञा को मानना और उसका अपने जीवन में पालन करना। जैसा कि यिर्मयाह 7:1-11 में यहाँ पर यिर्मयाह लोगों को अपने जीवन के तरीकों को बदलने का आग्रह करता है, क्योंकि उनके जीवनों में बुराइयां थी। और वचन में हम देखते हैं कि जो वचन यहोवा के ओर से यिर्मयाह के पास यहूदियों के लिए पहुंचा, उसे उसने यहोवा के भवन के फाटक पर खड़े होकर यहूदियों को वचन का प्रचार किया, जो यहोवा को दंडवत करने आए थे। उसने उनसे कहा कि सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, यदि उन्हें वायदे किए हुए स्थान में बसे रहना है तो उन्हें अपने जीवन की तमाम बुराइयों को अपने से दूर करना होगा, जिसमें उनका चाल चलन, उनके बुरे काम जैसे कि कमज़ोर का शोषण करना, निर्दोषों पर हिंसा करना, दूसरे देवताओं के पीछे चलना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और झूठी शपथ खाना आदि, ये सब बुराइयां उनके जीवन में मौजूद थी। और इन सब बुराइयों का परमेश्वर का वचन विरोध करता है। जबकि कई बार हम भी ऐसे ही गुनाह को अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि हम हफ्ते भर वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और फिर हम हर रविवार को चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, और फिर हम पाप अंगीकार करते हैं। इसके बाद फिर हमारे जीवन वैसे ही हो जाते हैं। सोमवार से रविवार तक हम फिर उसी तरीके के हम लोग अपने जीवन में गुनाह करते हैं, जबकि परमेश्वर हमें अपने चाल चलन और अपने बुरे कामों को सुधारने के लिए हमें आह्वान करता है कि हम खोखली धार्मिक कट्टरता और संस्कार पर विश्वास नहीं करें, वरन प्रभु के उन वचनों पर, उन शिक्षाओं के साथ हमें अपने जीवनों को पूर्ण रूप से बदलना चाहिए, जैसा कि इस लड़के के जीवन में हुआ। एक माता पिता जो एक सच्चे मसीह थे और अपने पुत्र के लिए हमेशा चिंता किया करते थे, उन्हें समझ नहीं आता था कि वे पुत्र के साथ क्या करें,
क्योंकि वो जब भी अपने पुत्र को चर्च चलने के लिए कहते थे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वह घर पर ही रुक जाता था। और लड़का घर पर ना तो कभी प्रार्थना करता था और ना ही कभी बाइबल को पढ़ता था। इसलिए उसके माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे और हमेशा अपने पुत्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। और जब समय जैसे धीरे धीरे बीतता गया, उस लड़के में कोई फर्क नहीं आया। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि बेटा, हम मसीह लोग हैं और हमें कम से कम प्रभु की प्रार्थना रोज करनी चाहिए, और हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि तुम प्रभु की प्रार्थना रोज सुबह शाम किया करो। तो इस पर उस बेटे ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ प्रार्थना ही तो करनी है। और उसने अपने माता पिता को रोज प्रार्थना करने का वचन दिया। और जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया और जब वह सुबह शाम प्रार्थना किया करता था, और अभी उसको कुछ दिन ही हुए थे कि उसके जीवन में हलचल होने लगी। उसके मन में उसका मन विचलित होने लगा और वह अपने आप से बार बार कहने लगा कि मैं जिन बातों को रोज सुबह शाम प्रार्थना के द्वारा बोलता हूं, उन्हें ही मैं अपने जीवन में नहीं करता हूं। तो इस बात से वह परेशान हो उठा। और अगले दिन रविवार था और सुबह वो जल्दी ही उठकर तैयार हुआ। और जब वो अपने आप को तैयार कर रहा था तो उसके माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा, इतनी सुबह तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तब वह बेटा अपने माता पिता के पैरों में गिरकर और उनसे क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि प्रभु की प्रार्थना वास्तव में तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उस प्रार्थना के अनुसार जीवन व्यतीत ना किया जाए। इसलिए आज मुझे चर्च जाना है। जैसा उसका पुराना जीवन था, आज उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था। क्योंकि आज अधिकतर हम मनुष्यों की परेशानी भी बस इतनी सी है कि हम जानते तो हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, और हम ईश्वर की इच्छा को हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। क्योंकि इस लड़के ने भी यही सोचा था कि प्रभु की प्रार्थना करने से क्या फर्क पड़ेगा, किंतु उसके जीवन में फर्क पड़ा। क्योंकि जब उसने प्रार्थना करना शुरू किया तो उसका मन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया जहां उसे लगने लगा कि जो कुछ भी वह प्रार्थना में कहता है वह तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसका जीवन उस प्रार्थना के अनुसार ना गुजारा जाए। और आज हमारे लिए दुख की बात यह है कि हम बाइबल के वचनों को पढ़ते तो हैं, परंतु प्रभु के उन वचनों के समान अपने जीवनों को जीते नहीं हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचनों का अध्ययन करना और उन पर मनन चिंतन करना चाहिए। केवल ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, वरन हमें उनके वचनों के अनुसार हमें चलना भी होगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें वचनों को सुनने वाला ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाला भी बनना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तभी कार्य करता है जब हम उसे अपने जीवन में कार्य करने देने का अवसर प्रदान करेंगे। आगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21 से 29 पद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग उनकी शिक्षा की अवहेलना करते हैं वह परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज के मत्ती रचित सुसमाचार के पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को वफादार बने रहने के लिए कहते हैं और उन्हें ये चेतावनी देते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और वचन में लिखा भी है कि उस दिन बहुत से लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए?
तो न्याय के दिन में उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कि हे हुक्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए सभी काम मेरे नहीं वरन तुम्हारी खुद की महिमा के लिए होते हैं। इसलिए आज हमें न्याय के दिन के विषय में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा और अपना हिसाब किताब देना होगा। क्योंकि न्याय के दिन के विषय में यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 31 से 46वें पद में अगर हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें इसके विषय में हमें जानने को मिलेगा, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उन लोगों के साथ भलाई करो जिनको ज़रूरत है, क्योंकि न्याय के दिन में हमसे पूछा जाएगा कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था क्या तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था क्या तुमने मेरी सुधि ली। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवनों को खुदावंद यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हम लोग बदलने की कोशिश करें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि केवल हे प्रभु कहने के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, परंतु जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। इसलिए कहने और करने में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें ये चुनौती देते हैं कि यदि हम उनके अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि आज्ञा का पालन हमारी सभी धार्मिकता और बलिदानों से भी बढ़कर है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें एक बुद्धिमान और एक मूर्ख मनुष्य का उदाहरण देकर हमें समझाते हैं, जिन्होंने अपना घर दो अलग अलग नींवों पर बनाया, जिसके विषय में खुदावंद यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि जो मेरी बात को सुनकर उन पर चलता है या उन्हें मानता है तो वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसी, आंधियाँ आई और उस घर से टकराई और घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और यहाँ पर चट्टान परमेश्वर है और उस चट्टान पर डाली गई नींव खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारा दृढ़ विश्वास है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में भी कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश न किया जाए वरंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनकर उसे अपने जीवन में अपनाता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और फिर मेघ बरसी, बाढ़ें आईं, आंधियाँ चली और जो उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षाएं और विपत्ति का सामना तो दोनों को करना पड़ा, परंतु जिसने अपना घर परमेश्वर रूपी चट्टान पर व प्रभु यीशु रूपी नींव पर बनाया था, उस घर पर विपत्ति के समय वह घर मजबूती के साथ खड़ा रहा और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यदि वैसे ही हमारे जीवन भी होंगे तो हमें भी कुछ नुकसान नहीं होगा, वरन ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमें संभालेगा। परंतु दूसरी ओर हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति के विषय में जिसने अपना घर शैतान रूपी उस बालू पर बनाया और उस बालू पर घर बने होने के कारण जब आंधी आई, विपत्ति आई, परेशानी आई तो वो घर नष्ट हो गया। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन भी यदि इस रेत पर बने हुए घर के समान है तो एक दिन हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। ज़रूरत है कि हमें प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने की और उसके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने की, क्योंकि घर के सबसे
महत्वपूर्ण बात उस घर की नींव है, क्योंकि घर देखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि उस घर की नींव कमज़ोर है तो उस घर का निर्माण करना भी व्यर्थ होगा। और यदि हमारे जीवन रूपी घर की नींव प्रभु यीशु है तो हमारा जीवन रूपी घर भी मजबूत रहेगा और उस पर कोई भी विपत्ति या परेशानी हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के वचनों को सुनकर उनका पालन करना और उनके अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना होगा। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियाँ, तमाम वे आंधी, तमाम वे तूफान, संकट, विपत्ति, तमाम वो परीक्षाएं जो हमारे सामने आएंगी वो हमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो दृढ़ विश्वास है वो उस परमेश्वर पर है और वो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। क्योंकि यदि हम लोग जो है कि उस घर के समान है जो घर चट्टान पर बनाया गया है, तो वो घर हमेशा मजबूत है। और यदि हमारा घर मजबूत है तो हम परमेश्वर में भी मजबूत है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनना चाहिए, अपने जीवन को उसके अनुसार ही हमें व्यतीत भी करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर करे कि हम भी परमेश्वर का वचन का पालन करके एक मजबूत नींव का निर्माण करें। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे, ताकत दे और अपनी उपस्थिति हम सबके जीवन में दे। खुदा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सब लोगों के मालिको, सब आत्मियों से सलाम। आओ आसमान की फौज शरीफ, बाप बेटों की हो तारीफ। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।
से